these are related to violence that was reported in Sambhal in Uttar Pradesh. The big update is that the judicial probe report has been submitted to the Chief Minister. And what we can bring to you are some sensational revelations that have been made in this particular report, some sensational claims that have now come to the fore. In 1947, as per the report, 45% Hindus were there in Sambhal, and now only 15% Hindus are left in Sambhal. And clearly, this points to politics of appeasement and how that seems to have changed the demography as far as Sambhal is concerned. Stunning revelations, in fact, have now emerged. Sources suggest that judicial report of Sambhal violence has been submitted to the Chief Minister, and this mentions that since 1947, only Hindus were being killed in every riot and every incident of violence. This time also, there was a plan to kill Hindus. Rioters were called from outside for inciting violence and for indulging in violence. Hindus were saved due to the presence of police in Hindu locality. Only 15% Hindus are left in Sambhal. So that's the claim that's being made in this particular report. Let's go across to my colleague Adib, who is joining us live right now for more on this. Adib, these are some sensational claims. Can you bring us up to speed with the key highlights? What exactly does this report say? Well, Hina, see, the Judicial Commission was formed by Chief Minister Yogi Adityanath right after Sambhal violence took place in 2024, and this Judicial Commission was given a 2 months. Initially, they were given a period of 2 months to submit their report, but due to the extensive investigation that the Judicial Commission had to do, they kept on taking extension, and now finally they have submitted at least 2 books to Chief Minister Yogi Adityanath, in which they have detailed that how the Sambhal violence broke out and what's the actual reason for the violence that has taken place in Sambhal. Now, as per the sources, Sambhal violence is a old rivalry between the Muslim community that has been taking place in Sambhal area for a quite long period of time. And in this particular report, the 3-member Judicial Commission that was formed by the Chief Minister Yogi Adityanath, which included a retired IPS officer, an IAS officer and a district judge, they have completed their investigation and they have submitted the report to Chief Minister Yogi Adityanath directly at his residence this morning, Hina. So a couple of important points as you are telling us. One of them, of course, being that violence was a result of an old rivalry, and also we told our viewers about how the percentage of Hindus in Sambhal has come down from 1947 when it used to be 45%. Adib, request you to stay on with us. We have Rakesh Tripathi of the Bharatiya Janata Party joining us on the broadcast as well. Good afternoon, Mr. Tripathi. Thank you for speaking with us here on Times Now. Your first thoughts on the details that have emerged from this report that has been submitted to the Chief Minister of Uttar Pradesh. ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री जी के पास सबमिट की गई है, उसके सारे फैक्ट सामने आएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर निकल करके सामने आ रही है कि संभल में जो लगातार बार-बार दंगे हुए हैं, इन दंगों के कारण से बड़ी संख्या में हिंदुओं को वहां पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हिंदुओं का बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, उनकी संपत्तियों का नुकसान हुआ, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर मजहब के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो पलायन ही अपने लिए सबसे सेफ रास्ता समझता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है, और इसी के कारण से आज हिंदू वहां आबादी बहुत अल्पसंख्यकों से भी कम हो गई है। पूरे देश भर में जितनी अल्पसंख्यक आबादी है, उससे भी कम आबादी आज हिंदुओं की संभल में रह गई है। ये रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत गंभीर खतरे दिखाती है। जिस तरह से आज देश भर में डेमोग्राफी चेंज के लगातार एक एफर्ट किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं षड्यंत्र के तौर पर, उसमें संभल एक मॉडल है यहाँ पर कि जहाँ डेमोग्राफी को किस तरह से बदला गया है, और ये एक गंभीर खतरा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये रिपोर्ट निश्चित तौर पर संभल की स्थिति को सुधारने में और देश भर में जो डेमोग्राफी चेंज का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इस डेमोग्राफी चेंज की षड्यंत्र को उजागर करने में ये रिपोर्ट निश्चित तौर पर बहुत कारगर होगी। जी, राकेश त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आई एम ऑल्सो बीइंग जॉइंड ऑन द फोन लाइन बाय फखरुल हसन चांद ऑफ द समाजवादी पार्टी। Good afternoon. Thank you for speaking with us here on Times Now. How would you like to respond to the details that have emerged from this Sambhal, report, Sambhal violence case report that has been submitted to the Chief Minister? In 1947, 45% Hindus were there in Sambhal, and now there are only 15%. It's politics of appeasement that seems to have changed the demography, it says. देखिए, वसीम बरेलवी की 2 लाइनें हैं कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खास अदालत में सफाई देंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई है ना, इससे हमें आश्चर्य है,
ना हमें कोई आश्चर्य हुआ कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है या क्या रिपोर्ट आनी थी। ये तो पहले से तय था। जो सरकार की मंशा थी, सरकार की मंशा के खिलाफ, सरकार की आदेश के अनुसार जो भी रिपोर्ट थी वो तैयार हुई है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की अदालत में जब ये फैसला जाएगा और गुण और दोष के आधार पर फैसला होगा तो वो जिन लोगों को वो दोषी ठहरा रहे हैं वो सब के सब बरी होंगे, क्योंकि ये देश की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से वो कमेटियां बनाती हैं, कौन लोग होते हैं उन कमेटियों में, कौन लोग उन आयोगों में होते हैं, तो ये तो पूरा देश देख रहा है। इसलिए हमें ना कोई आश्चर्य है इस रिपोर्ट पे जो आई है, और हमें पहले से पता था, सबको पहले से पता था कि उस रिपोर्ट में क्या होगा। जी, फखरुल हसन चांद जी, आई विल गेट मिस्टर राकेश त्रिपाठी टू रिस्पॉन्ड टू द पॉइंट दैट यू हैव मेड, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने वसीम बरेलवी को कोट किया और आपने कहा कि ऐसा एक्सपेक्टेड ही था, तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है आपसे ये सवाल पूछते हुए कि जो आपने जवाब दिया कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड ही था। ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता कि अगर एक रिपोर्ट में कुछ लिखा गया है उसमें शायद कोई सच्चाई भी हो सकती है? अगर हिंदूज की संख्या वहां पर कम हुई है किसी वजह से, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं लगता कि इस बारे में भी थोड़ा जांच करने की जरूरत है? शायद कोई वजह शायद हो सकती है। मुझे भी लगता है कि जो शायद आपने शब्द इस्तेमाल किया, शायद तो हो सकता है बहुत कुछ। जिस शायद की आप बात कर रहे हैं, शायद तो ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बैठ के इस रिपोर्ट को तैयार कराया हो। शायद तो ये भी हो सकता है कि वे पहले से सब चीजें तय थी। शायद तो ये भी हो सकता है कि पूरा प्रोपेगेंडा है ये जो भारतीय जनता पार्टी चलाती थी। शायद तो बहुत सी चीजें होती है, लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे शायद कह देने से या हमारे कुछ कह देने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। और सच्चाई क्या है वो सामने आएगी। देश की अदालत है, देश में न्यायिक व्यवस्था है, ये जितने भी मामले हैं सब जब न्यायालय के में जाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देखते हैं जो फखरुल हसन चांद जी ने कहा है अभी? देखिए, शीशे की तरह जो सच्चाई साफ है उसको कोई इनकार करने की कोशिश करे तो वो डेटा की जुबानी सामने दिख रही है। आखिर मुद्दे से अंधेरा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी इनकार करने की कोशिश करे, लेकिन ये सच है कि संभल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ये सच है कि संभल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया। ये सच है कि सत्ता जो समाजवादी पार्टी की रही हो या कांग्रेस पार्टी की रही हो, इन्होंने कभी भी इन दंगों में प्रभावी कार्रवाइयां नहीं की और इसके कारण से वहां से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। आज जो हिंदुओं की आबादी है अब इस कहानी को चीख चीख करके कह रही है, इसलिए इसको आखिर मुद्दे से अंधेरा नहीं होगा। All right. Thank you very much, Mr. Rakesh Tripathi and Mr. Fakhrul Hasan Chand. Appreciate both of you for joining us here on Times Now and sharing with us your perspective. Let's quickly now move on, and we have some more breaking inputs coming in at this point in time. We have a